Okay, so today we are going to cover lecture number 4, that is complements and codes. These are the outlines for today's lecture. We'll start with the negation. Negation is the process where we basically convert positive number into negative or negative to positive by taking the two's complement of that number. Okay, so that process is called as negation. We will see binary addition. I'll recall you how can we do binary additions, and then we are coming to the arithmetic overflow. Okay, as discussed in morning class, morning tutorial class, there is a issue when both the signs are same. Okay, minuend and subtrahend both are having same sign, then there may be the possibility of overflow. Okay, we'll cover that aspect over there. Then we'll see how can we do the subtraction using r's complement representation and r minus 1's complement representation. I mean to say, with the help of 2's complement representation for binary number, and with the help of 10's complement representation for decimal number. Similarly, with the help of 1's complement representation for binary numbers, and with the help of 9's complement representation for decimal number. Okay, decimal का base 10 होता है, तो r का मतलब 10 हो गया और r minus 1 का मतलब 9 हो गया. बाइनरी का बेस 2 होता है, तो r का मतलब 2's complement हो गया और r minus 1 का मतलब 1's complement. Okay, then we come to the another aspect. Codes basically, for security reason we need to encode the information. And how can we encode that information? A variety of codes are available over there. We will see that aspect over there in codes. Specifically, we need to cover BCD code over here, access 3 code, gray code, and alphanumeric code. Means how can we encode the information with the help of these codes only. Okay, receiver and transmitter would know we are using that encoding, and receiver can easily decode the data if that data is particularly encoded in BCD code or access 3 code or gray code or any other binary code. So starting with the negation. Negation is the operation of converting a positive number to its negative number equivalent, as I said, or a negative number to its positive equivalent. Okay, we negate a signed binary number by taking 2's complement of it. For example, we can see over here, each of the following number is a signed binary number. In the 2's complement system, determine the decimal value in each case. तो बता सकते हैं आप, निकालिए क्या डेसिमल वैल्यू होगी इन तीनों नंबर की. ये तीनों ही नंबर आपके 2's complement रिप्रेजेंटेशन में लिखे हुआ है. एसी बंद करेंगे, फिर आप कहेंगे फैन चला दो, फिर आवाज डिस्टर्ब होगा. क्या सभी को फैन तो नहीं चलवाओगे फिर? तो आंसर निकाल के रखिए. बताइए क्या होगा आंसर. सबसे पहले कोई भी नंबर आपके पास है, वो किसी भी रिप्रेजेंटेशन में हो, चाहे साइन मैग्नीट्यूड, चाहे वंस, चाहे टूस, हम एमएसबी चेक करेंगे. अगर एमएसबी 0 है तो इसका मतलब वो नंबर पॉजिटिव होगा. हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपका वो नंबर आपको मैग्नीट्यूड बताएगा. ओके, तो 0 है, पहला ए पार्ट आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है. और मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा आगे से. तो 0, 1, 2, 3 यानी कि 2 to the power 2, 2 to the power 3, दिस नंबर इज +10. ओके, कमिंग टू द बी पार्ट. बी पार्ट पे आपका एमएसबी 1 है, इसका मतलब नंबर नेगेटिव है. और नंबर जब भी नेगेटिव होगा 2's complement रिप्रेजेंटेशन या 1's complement रिप्रेजेंटेशन में, हमें उस पूरे नंबर का इंक्लूडिंग साइन बिट 2's complement लेना होगा. ओके, 2's complement रिप्रेजेंटेशन में. और 1's complement रिप्रेजेंटेशन होता तो 1's complement लेते पूरे नंबर का, जो हमें मैग्नीट्यूड बताता.
तो यहाँ पे वी नीड टू टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर 11010 क्या होगा इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। हम राइट साइड से चलेंगे, पहला 1 आएगा जब तक एज इट इज यानी कि 0 1, फिर 1 का 0 0 का 1 तो 0 1 1 0 0। ओके तो क्या लिख गया ये नंबर, दिस इज -6। ओके 1 आ रहा है एमएसबी में, इसका मतलब वो नंबर नेगेटिव है। और मैग्नीट्यूड के लिए हमने उस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लिया वापस से, जिससे हमें पता चला वो नंबर 6 लिखा हुआ है, तो इसलिए दैट नंबर इज -6 इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली कमिंग टू द लास्ट पार्ट, 1 फिर से एमएसबी पे आपको दिख रहा है, इसका मतलब नंबर नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड के लिए यू नीड टू टेक टूज कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा टूज कॉम्प्लीमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड, पहला 1 हमें पहले ही मिल गया तो 1 1 1 1 0। ओके तो क्या हो जाएगा ये नंबर -15। ओके तो दिस नंबर इज -15। तो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई थिंक, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज नेगेशन व्हेनेवर वी नीड टू टेक टूज कॉम्प्लीमेंट। कमिंग टू द बाइनरी एडिशन, आई वुड लाइक टू रिकॉल यू, whenever we need to perform addition using binary numbers, you should remember the addition of two binary numbers is performed in exactly the same manner as the addition of decimal number. Means we need to start from the LSD, okay, and then coming to the MSD. So least significant digit first, carry of 1 into the next position may be needed. 4 different cases, there will be a possibility of 4 different cases only. Okay, ये सभी के फिंगर टिप पे होना चाहिए। जब भी 0 + 0 हम करेंगे, यू कैन सी द रिजल्ट विल बी 0। जब भी हम 0 + 1 करेंगे, रिजल्ट विल बी 1। ओके कैरी विल बी 0 ऑब्वियसली इन 2 केसेस। जब भी हम 1 + 1 करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिजल्ट इज 0 विद 1 कैरी। ओके रिजल्ट इज 0 विद 1 कैरी, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 0 प्लस कैरी ऑफ 1 इनटू नेक्स्ट पोजीशन, that will be forwarded to next position. Okay similarly there may be the possibility of this combination. Okay that is very frequent combination, जहाँ पर हमें 1 + 1 + 1 ऐड करना होगा। 1 + 1 तो आपके माइनवेंड और सब्ट्राहेंड के होंगे, और 1 एक कैरी आई होगी पहले पीछे वाले जो भी सब्ट्रैक्शन से या एडिशन से। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, जहाँ पर आप देखेंगे कि रिजल्ट 1 होगा विद 1 कैरी। ओके तो सम तो होगा 1 + 1 कैरी होगी, जो कि नेक्स्ट पोजीशन में आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, और ये आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि आगे जब हम परफॉर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल वी कैन सी ओवर हियर द ऑपरेशंस ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्चुअली यूज ओनली एडिशन as their basic operation. We have discussed in tutorial classes already. We need to minimize the number of hardware, so we are performing all the arithmetic operation by using addition only. Okay, few examples are there. We are adding 3 + 6. The representation, binary representation of 3 is this 0 1 1. Binary representation of 6 is 1 1 0. Whenever we will add 1 + 0 is 1, 1 + 1 is 0 1 carry, 1 + 1 0 1 carry. Okay so this is 1 0 0 1, that is 9. Okay यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास लिमिटेशन होती कि हम हर एक नंबर को 3 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप देखते कि ये जो बिट होती है हमको लगता कि ये कैरी है, और हम इसे डिस्कार्ड कर देते। दिस इज कॉल्ड एज साइन बिट ओवरफ्लो, लेकिन ये कैरी का पार्ट नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करते हैं, वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड एज वेल, कि हम ये देखेंगे कि आपका माइनवेंड, आपका सब्ट्राहेंड और आपका डिफरेंस, तीनों में से जो भी मैक्सिमम, जो भी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट में आ रहा होगा, आपको हर एक नंबर को उतने ही डिजिट में रिप्रेजेंट करके चलना होगा। ठीक है, मान लीजिए सब आपका जो डिफरेंस है वो 8 बिट में आ रहा है, और माइनवेंड और सब्ट्राहेंड 7 बिट के हैं, तो आपको माइनवेंड और सब्ट्राहेंड भी 8 बिट में ही रिप्रेजेंट करने होंगे। और वी नो हाउ कैन बी रिप्रेजेंट, हमें एक 0 ऐड कर देना होगा लेफ्ट साइड में, तो वो 8 बिट का हो जाएगा। So this is the way to avoid the sign bit overflow. Okay, we will see that. Another example, you can see this is 9 in binary 1001. This is 15 in binary. We are adding 1 + 1, that is 0 1 carry. 1 + 1 0 1 carry. 1 + 1 0 फिर 1 carry. This is the fourth case, 1 + 1 + 1, that is 1 and 1 carry. Okay, so we know 19 + 5 15 + 9 results would be 24, and this is 24 in binary. Okay, again similarly agar integer and fraction both parts are there, then we can also do the needful in the same manner. हमने ये बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया,
ये हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, वी ऑलरेडी नो। ओके, मैं हर एक लेक्चर में आपको वापस से तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा, वेरी डिफिकल्ट टू मी, लेकिन आपको रिकॉल करना होगा। हमने पढ़ा है कि हाउ कैन बी कन्वर्ट इंटीजर इनटू बाइनरी एंड हाउ कैन बी कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू बाइनरी। तो इट इज your duty now, refer all 3 lectures which are uploaded on Google Classroom. Okay, if you face any issue then we can discuss. Okay, so by adding, आप यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे तो 1 plus 0 that is 101, 110 1 carry, 110 1 carry, 110 फिर 1 carry, 111 with 1 carry. Okay, so this is the way to perform binary addition. I hope it is clear to all. सभी की क्लियर है ना? कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज नोन एज अरिथमेटिक ओवरफ्लो। एज आई सेड, व्हेन 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, ओके, सेम साइन होगा जब भी दिक्कत आएगी, क्योंकि तभी आपका जो रिजल्ट है वो ग्रेटर हो सकता है माइनवेंड या सब्ट्राहेंड से। अदरवाइज तो सब्ट्रैक्शन होगा तो फिर वो ग्रेटर होगा ही नहीं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। अगर साइन डिफरेंट है तो कभी भी आपका डिफरेंस ग्रेटर नहीं होगा माइनवेंड और उससे, है ना? तो व्हेन 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव नंबर्स आर बीइंग एडेड, and overflow could occur if there is a carry happening to the sign bit position. There may be a confusion over there, as I discussed. Overflow can occur when the minuend and subtrahend have different signs. When adding two n bit numbers, it is possible to get a n plus 1 bit result if there is a carry out. ओके, सो ऑन पेपर इट इज इजी, वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन कंप्यूटर को हमें बताना पड़ेगा, उतने बिट के रजिस्टर हमें चूज करने पड़ेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो कितने बिट में पहुंच सकता है। ओके, सो इन टूज कॉम्प्लीमेंट एड अ MSB 0 फॉर अ पॉजिटिव और MSB 1 फॉर नेगेटिव। रिमेंबर दिस, अगर नंबर नेगेटिव है तो हम उतने 1 ऐड कर देंगे आगे, और अगर नंबर पॉजिटिव है तो उतने 0 आगे ऐड कर देंगे। ओके, रीजन बिहाइंड कि 1 जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि वी डू नॉट वांट टू चेंज द साइन ऑफ दैट नंबर, और साइन हमें MSB से ही पता चल रहा है कि अगर वो 1 है देन साइन इज नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव नंबर है तो उतने ही 1 ऐड कर देंगे, अगर पॉजिटिव है तो उतने ही 0 ऐड कर देंगे। दैट इज द डिफरेंट थिंग वी आर डिस्कसिंग इन 8 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। द रेंज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इज -127 टू +127। ये भी हम देख चुके हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट के केस में रेंज आपकी क्या होती है, -2 to the power n minus 1 2 plus 2 to the power n minus 1। then the operation to add +70 और +80, एक एग्जांपल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट जो MSB है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द साइन, तो +70 इसका मतलब 0, और ये हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। +80 ये 0 हमने ये बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। नाउ वी आर एडिंग 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 कैरी। ओके, सो ये जो कैरी है ये अब यहाँ पे आपका पहुंच जा रही है, जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन वो डिस्कार्ड नहीं होनी चाहिए बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, सो दिस शुड बी -150 अगर वो दोनों नेगेटिव होते, और पॉजिटिव होते तो दोनों ये +150 होना चाहिए था, तो दोनों पॉजिटिव है, दैट शुड बी +150। लेकिन MSB पे 1 आने की वजह से हमको ऐसा लग रहा है कि दिस नंबर इज नेगेटिव। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, दिस 1 इज द पार्ट ऑफ 150 ओनली, मैग्नीट्यूड का ही पार्ट है, जो आपकी यहाँ से एक बिट ओवरफ्लो होके उसने साइन बिट को कवर कर लिया है। तो ऐसे केसेस में वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, और रिजल्ट यही है कि हम ये तीनों नंबर्स देख लेंगे कि ये n बिट में है, ये n बिट में है, और ये n+1 बिट में आ रहा है, तो वी नीड टू रिप्रेजेंट दीज टू नंबर्स इन n+1 बिट ओनली। okay, then there will be the proper solution we will get. So you should make sure that thing. Now coming to the subtraction using R's complement representation, as we have seen, there are two ways for performing subtraction. One is using R's complement method and one is using R minus 1's complement method. Okay, if we will talk about binary numbers, तो दो method हो जाएंगे, 2's complement, 1's complement. For decimal numbers, there will be two methods, 10's complement and 9's complement method. Okay, how will we perform? We will perform the case first when m and n are two positive numbers. चार केसेस हो सकते हैं सब्ट्रैक्शन में, जब आपका माइनवेंड और सब्ट्राहेंड दोनों पॉजिटिव हैं, एक केस जब दोनों नेगेटिव है, और एक केस जब आपका m ग्रेटर है n से, और एक केस जब n ग्रेटर है m से। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि m and n are two positive numbers, represent m in same base of n,
represent minus n in r's complement that will be n star। तो हमें पता है कि तरीका ये है कि जो भी subtrahend है हमें उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। minuend as it is, subtrahend का हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो नंबर अब नेगेटिव बन गया। ओके, दैट इज द प्रोसेस नेगेशन एज आई टोल्ड यू। हम उसे रिप्रेजेंट अब करेंगे n स्टार से, तो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n स्टार। ओके, क्योंकि अभी जनरलाइज है, बाकी अगर नंबर होता तो वो हमारे बाइनरी की फॉर्म में ही होता ऑब्वियसली। नाउ वी विल ऐड m एंड n। तो पहला स्टेप ये है कि subtrahend का हम टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। and it should be clear to you कि here m is the minuend and n is the subtrahend। जिस नंबर से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो minuend कहलाता है, और जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो subtrahend कहलाता है। तो आप subtrahend का टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे और स्टेप 2 में ऐड कर देंगे उसे minuend के साथ। ओके, ऐड करने के बाद आपके पास दो केसेस होंगे। पहला केस, अगर रिजल्ट मतलब कैरी आती है, पहला केस कैरी आएगी तो आप उसे डिस्कार्ड कर देंगे और रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा। और ये भी क्लियर है कि कैरी केवल उस केस में आएगी जब आपका minuend subtrahend से ग्रेटर है, when m is greater than n, only in that case we will receive carry। okay, तो we need to discard that carry and result is positive। ये हमने ट्यूटोरियल में भी डिस्कस किया है। बी पार्ट, अगर कैरी नहीं आती है तो इसका मतलब है कि वो नंबर नेगेटिव होगा, और वो जब ही होगा जब minuend आपका स्मॉलर है subtrahend से। वो हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन को देखते ही कि कैरी आने वाली है या कैरी नहीं आने वाली है। अगर minuend ग्रेटर है तो कैरी आएगी ही आएगी फॉर श्योर, और रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। दैट शुड बी एक्सपेक्टेड इन आवर माइंड। ओके, हमें पता चल जाएगा कि हम सही डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन कैरी नहीं आ रही है, दैट विल बी द केस व्हेन minuend इज लेसर देन subtrahend। उस केस में कैरी नहीं आएगी, और मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हमें ये तो पता चल जाएगा कि रिजल्ट आपका नेगेटिव है, बट फॉर फाइंडिंग आउट द मैग्नीट्यूड वी हैव टू अगेन टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, तो वो चीज यहाँ टेक आर्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर बाइनरी है तो टूज कॉम्प्लीमेंट, और अगर डेसिमल है तो टेंस कॉम्प्लीमेंट। जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं, वी नीड टू परफॉर्म दैट कॉम्प्लीमेंट अगेन फॉर फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड। Okay, so this is the known process. Subtraction using 2's complement, we are having one example. Using 2's complement, perform 75 minus 26। तो पहला स्टेप हमें 2's complement से परफॉर्म करना है। ये केवल पॉसिबल है बाइनरी में, डेसिमल में दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि नंबर अगर डेसिमल में दे रखे हैं तो हमें उन नंबर्स को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। एक स्टेप और बढ़ जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल हमने देखा भी था आपकी क्लास में, ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो नंबर है उसको पहले बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ पे भी उस नंबर को हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लिया। जहाँ पर ये फर्स्ट जो जीरो है वो बता रही है कि ये नंबर आपके पॉजिटिव हैं। ओके, एमएसबी से हमें पता चल जा रहा है कि दिस नंबर्स आर पॉजिटिव। अगर ये नंबर नेगेटिव होते तो फिर उसका तरीका टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंट है। क्या होता है तरीका? अगर हमें -75 लिखना होता टूज कॉम्प्लीमेंट में, तो हाउ कैन वी डू दैट? क्या करते? पहले +75 लिख लेते और फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेते, वो होता -75। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी सबट्राहेंड है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है, और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? राइट साइड से हम चलेंगे, पहला 1 आएगा जब तक एज इट इज, तो 0 1 देन 1 0 0 1 1 1। ओके, ये आ गया आपका टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 26, जो कि -26 हो गया, सॉरी +26 हो, -26 ही हो गया। अभी ये दोनों नंबर प्लस है, फिर ये नंबर माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस ब्रैकेट में चला जाएगा, तो वो सब्ट्रैक्शन ही हो जाएगा। दिस इज +75 और नाउ वी आर एडिंग द नंबर। तो ऐड करेंगे तो 101 110 1 कैरी 110 1 कैरी 110 फिर 1 कैरी, दैट इज 1 0 1 1 110 फिर 1 कैरी 110 और 1 कैरी। तो फाइनल कैरी इज कमिंग, वी नीड टू डिस्कार्ड दैट कैरी एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि रिजल्ट इज पॉजिटिव। ओके, तो जो भी बाइनरी में नंबर आ रहा है इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में एंड वी वुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द आंसर। तो क्या होना चाहिए? क्या लिखा हुआ है? दिस इज 49 इन बाइनरी। ओके, तो हमें यहाँ से कंफर्म भी हो जाना चाहिए कि 75 से 26 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 रिजल्ट आना चाहिए। तो दैट रिजल्ट आर कमिंग। ओके,
कोई डाउट है किसी को? आगे चलते हैं। दिस इज द अनदर वेरिएशन जहां पर माइनवेंड लेसर है। दोनों पॉजिटिव जब नंबर होंगे तो दो तरीके की पॉसिबिलिटी आ सकती है, या तो माइनवेंड ग्रेटर होगा या माइनवेंड लेसर होगा। ग्रेटर हमने देख लिया, अब यहाँ पर लेसर आप देख रहे हैं कि माइनवेंड इज लेसर देन सब्ट्राहेंड 26 माइनस 75। बंद नहीं हुआ क्या अभी एसी? ये 26 है, ये 75 है। हमें 75 का टूज कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। ये हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 75। देन वी नीड टू ऐड। ओके, ऐड कर दीजिए। आप देख रहे हैं कोई कैरी नहीं आ रही है, इसका मतलब रिजल्ट नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हमें इस रिजल्ट का वापस से टूज कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, जो कि ये आएगा। इसका मतलब दिस इज प्लस 14, सॉरी मतलब नेगेटिव हमें पता चल गया, कैरी नहीं है, और 49 मैग्नीट्यूड हो गया, तो दिस इज माइनस 49 इन डेसिमल। ठीक है, तो दो तरीके की पॉसिबिलिटी आएंगी। एक पॉसिबिलिटी जब कैरी आएगी हमें उसे डिस्कार्ड कर देना है, रिजल्ट पॉजिटिव है, कुछ नहीं करना। एक पॉसिबिलिटी जब कैरी नहीं आएगी, रिजल्ट नेगेटिव है, हमें उस रिजल्ट का फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट लेना होगा मैग्नीट्यूड पता करने के लिए। ओके, सो कमिंग टू द अदर वेरिएशन, जो कि जहाँ पे जब दोनों आपके नेगेटिव होंगे, माइनवेंड भी नेगेटिव है और सब्ट्राहेंड भी नेगेटिव है, देन हाउ कैन बी हैंडल सच सिचुएशन? तो व्हाट वी विल डू, रिप्रेजेंट माइनस m in r's complement, that is known as m star, माइनस n को भी r's complement लेंगे, that is known as n star। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक कंफ्यूजन हो सकता है। कई बार क्या होगा कि आप सोचेंगे कि हमने पहले m को लिख लिया, n को लिख लिया, और फिर हमें n का, जैसे हम प्रोसेस सुनते हुए आ रहे हैं कि हमें n का टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है और m के साथ ऐड कर देना है। लेकिन अगर वो नंबर नेगेटिव है, ओके, दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, कि अगर वो नंबर नेगेटिव है तो उनको लिखने का तरीका ही यही है कि वो टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में ही लिख के जाएंगे। मतलब पहले हम उसका पॉजिटिव वैल्यू लिख लेंगे और फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दैट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट नंबर इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग वन नंबर विद इंटीजर एंड फ्रैक्शन, दोनों पोर्शन यहाँ पे है, माइनस 31.5 और माइनस 93.125। तो पहले तो हम इन दोनों के पॉजिटिव इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख लेंगे, वो ये है। फिर हमें इन दोनों को ही टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना है। ओके, इसको टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में इसलिए लिखना है क्योंकि हम नेगेट करना चाह रहे हैं प्लस को माइनस। तो वी नीड टू टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड। ओके, यहाँ पर इंटीजर फ्रैक्शन का कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें राइट मोस्ट से चलना है, चाहे वो फ्रैक्शन पोर्शन हो चाहे इंटीजर। तो यहाँ से हम चलेंगे बिल्कुल राइट साइड से, तो 0001 यहाँ तक एज इट इज, और फिर आपका कॉम्प्लीमेंट ये रहा। ऐसे ही इसके लिए 01 एज इट इज और फिर सारा कॉम्प्लीमेंट ये आपके पास है। अब यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था कि आपको वापस से अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसा हम बता रहे थे कि सब्ट्राहेंड का टूज कॉम्प्लीमेंट लेके हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस 31.5 से अगर हम मतलब दो नेगेटिव नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस ए माइनस ऑफ माइनस बी, इसका मतलब है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चार पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी। पॉजिटिव नंबर से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर, ओके, वी कैन राइट दिस एज a प्लस माइनस b। ओके, सब्ट्रैक्शन एडिशन में कन्वर्ट हो गया। एक पॉसिबिलिटी आपकी बनेगी जो हम यहाँ अभी देख रहे हैं कि माइनस a माइनस ऑफ b। हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू एडिशन? दिस विल रिमेन सेम, और यहाँ पे हम इसको प्लस करने के लिए इस साइन को भी प्लस करना होगा। ओके, तो वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे दिस इज सॉरी, इस साइन को नेगेटिव ही रखना होगा, तभी तो वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो पाएगा। यहाँ पे जैसे माइनस ए प्लस ऑफ बी होना चाहिए, तो यहाँ पर भी ये माइनस ए प्लस ऑफ बी होना चाहिए, तब हमारी वैल्यू सेम आएंगी। एक पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती थी कि हमारा पहला साइन प्लस है और दूसरा साइन माइनस है, देन वी कैन आल्सो डू द सेम थिंग, दिस इज प्लस एंड दिस शुड आल्सो बी प्लस, ऐसे हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
एक पॉसिबिलिटी होती कौन सा बचा है, जहाँ पे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ओके, तो ये हम परफॉर्म कर पाते, ये तो एज इट इज। यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू निगेट दिस नंबर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है उसको हम टूज कॉम्प्लीमेंट करके हर बार नेगेट कर दे रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना ले रहे हैं, और अगर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव बना ले रहे हैं। और बाय डूइंग दैट वी आर कन्वर्टिंग सब्ट्रैक्शन इनटू एडिशन, अदरवाइज दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि हमने ऑलरेडी 93.125 को नेगेट कर लिया है बाय टेकिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट, ओके। सो देयर इज नो नीड टू टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड अगेन, क्योंकि ऑलरेडी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। नाउ यू विल ऐड करते जाइए, कैरी आ रही है, डिस्कार्ड द कैरी, रिजल्ट इज पॉजिटिव, ओके। हमें कुछ भी नहीं करना है, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है, 124.625। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो डिफरेंट है यहाँ पे उस केस में, कि अगर हम कैरी को इग्नोर करेंगे ऐसे केस में जब दोनों रिजल्ट आपके नेगेटिव हैं, तो आप देखेंगे कि एमएसबी आपकी क्या है। एमएसपी अगर 1 है तो आपका जो आंसर है वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा है और नेगेटिव होगा वो आंसर, क्योंकि एमएसपी इज 1। तो वी नीड टू टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट आंसर इन सच केस। तो टूज कॉम्प्लीमेंट इसका ये होगा, एंड दैट इज 124.625, और दिस इस 1 से हमें पता चला कि वो नंबर इज एमएसपी। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये नोट स्पेशल केस जहाँ पर साइन बिट ओवरफ्लो होने की पॉसिबिलिटी है। दिस इज द स्पेशल केस जहाँ पर दोनों साइन आपके सेम है, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दैट। ऐसे केस में अगर एमएसपी 1 है, जब दोनों साइन सेम है, तो आपका रिजल्ट टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा है, आपको टूज कॉम्प्लीमेंट लेना होगा रिजल्ट का और प्लेस करना होगा नेगेटिव साइन उसके आगे, ओके। तो ये वो केस है कि यहाँ पर एमएसबी 1 है, इसका मतलब वो नंबर नेगेटिव हो गया। मैग्नीट्यूड पता करने के लिए इंक्लूडिंग साइन वी नीड टू टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। So that's all about such example. Now coming to the subtraction using tens complement. Okay. तरीका वही है, अप्रोच वही है, बस यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट की जगह हम टेंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। टेंस कॉम्प्लीमेंट का तरीका है कि हम राइट साइड से चलेंगे, पहला नॉन जीरो मिलेगा उसे हम 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाकी सबको 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए कि वी वांट टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, हमें दिख रहा है कि दिस इज डेसिमल नंबर, ओके। अगर हमसे कहा जाता है टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करिए, तो हम इसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते और फिर पहले की तरह करते। लेकिन एक तरीका और है कि हम टेंस कॉम्प्लीमेंट यूज करके बिना कन्वर्जन के भी ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एंड दिस इज द वे हाउ वी आर डूइंग। दिस इज m in this case and this is n in this case, okay। तो what we need to do, we need to take tens complement of subtrahend 3250 का tens complement लीजिए और माइन्यूएंड के साथ ऐड कर दीजिए 72532 के साथ, ओके। बट एक और पॉइंट यहाँ पे, हमें दोनों की जो डिजिट है उनको इक्वल रखना होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ये 5 डिजिट में रिप्रेजेंट हो रहा है और ये 4 डिजिट में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हमें इसको भी 5 में रिप्रेजेंट करना होगा और उसका तरीका है कि हम 0 ऐड कर दें उसके आगे, ठीक है। तो ये दोनों नंबर हो गए m और n। अब n का आप टेंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए, तो क्या करेंगे, हम राइट साइड से चलेंगे, पहला नॉन जीरो आएगा उसे 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0 एज इट इज, 5 को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 5 इज 5, देन 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 2 7, 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 3 6, और फिर 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 0 इज 9। तो दिस इज द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सब्ट्राहेंड। अब हम उसे m के साथ ऐड कर देंगे, जैसे हम करते हैं डेसिमल एडिशन, सिंपल 2 + 0 2, 3 + 5 8, 5 + 7 12, 2 + 1 कैरी, 6 + 2 8 + 1 कैरी ऐड हो गया तो 9, 9 + 7 16 + 1 कैरी 6 और 1 कैरी, ओके। दैट कैरी शुड बी डिस्कार्डेड, तो रिजल्ट शुड बी 69282। तो हम यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आपको रिजल्ट वही मिलना चाहिए 6928। So this is the way how can we perform subtraction with the help of tens complement method। ये एग्जाम का पार्ट होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्ट्रैक्ट करिए यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड और सब्ट्रैक्ट करिए यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। इज दैट क्लियर टू ऑल? पहला स्टेप है हाउ टू टेक टेंस कॉम्प्लीमेंट, बाकी तरीका सेम है, मेथड एक ही है।
चाहे वो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड हो चाहे टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, हमें सब्ट्राहेंड का कॉम्प्लीमेंट लेना है और माइनवेंड के साथ ऐड कर देना है। हियर दिस इज अनदर एग्जांपल जहां पर माइनवेंड आपका लेसर है सब्ट्राहेंड से, मतलब नंबर नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर हम सेम अप्रोच यूज करेंगे। 3250 को पहले हमने 5 में रिप्रेजेंट किया, n ऑलरेडी 5 में है। आप 3250 के साथ तो कुछ करना नहीं है, जो भी आपका सब्ट्राहेंड है उसका टूज को सॉरी टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो पहला नॉन जीरो 2 है, तो 10 माइनस 2 8, बाकी सबको 9 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7 एंड 9 माइनस 7 2। ऐड कर दीजिए, दैट इज 30718, नो कैरी इज देयर। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा टेंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में जहाँ पर कैरी नहीं आ रही है, हमें पता है कि वो रिजल्ट नेगेटिव है। और मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हमें वापस से टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा रिजल्ट का। टूज कॉम्प्लीमेंट में भी हम यही कर रहे थे कि कैरी नहीं आ रही थी, इसका मतलब रिजल्ट नेगेटिव था, और मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हम रिजल्ट का टूज कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे। सिमिलरली ओवर हियर हम टेंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका वो क्या होगा, 10 माइनस 8 2, पहला नॉन जीरो, फिर 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 0 9 और 9 माइनस 3 6। ओके, तो दिस इज माइनस 69282, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आपको प्रॉपर एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना होगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, मेथड, अप्रोच डजंट मैटर। ओके, सो दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी जहां पर दोनों नंबर आपके नेगेटिव होंगे। उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको दोनों का ही टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना है और उन्हें आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ m इज दिस, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n इज दिस, वी नीड टू ऐड कर दिया। और ऐसे केस में आपको ध्यान देना है कि आफ्टर इग्नोरिंग द कैरी, अगर MSB 9 है, अभी हमने वहां भी देखा कि इग्नोरिंग द कैरी MSB 1 है, यहाँ पर 9 नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा 0 पॉजिटिव को, वहां पर 0 पॉजिटिव को और 1 नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अगर कैरी को हम डिस्कार्ड कर देंगे ऑब्वियस है, लेकिन इग्नोरिंग द कैरी MSB 9 है, देन आंसर इज इन टेंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। हमें क्या करना होगा, उसका वापस से टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा और माइनस साइन उसके आगे लगा देना है क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव है। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका, आप बताइए। What will be the tens complement? पता नहीं, मोबाइल में लिखा होगा आपके। क्या कर रहे थे आप, ये इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट बताइए। 2 8 7 5 7 0। Okay, so this is the tens complement of this number. So this is minus 75782. Okay, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। Similarly, now coming to the subtraction using r minus 1's complement, यहाँ पर बस एक चेंज आपको मिलेगा कि जो कैरी हमें मिलती है हम उसे डिस्कार्ड नहीं करते, उसे ले जाके हम ऐड कर देंगे आपके रिजल्ट के LSB के साथ। ओके, अगर बाइनरी है तो LSB और अगर डेसिमल है तो LSD। ओके, डिजिट और बिट का फर्क है। तो यहाँ पर बस इतना सा डिफरेंस हमें मिलेगा, बाकी अप्रोच सेम है। M and N आर टू पॉजिटिव नंबर, M आपको सेम रखना है, N का r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट लेना है और फिर उसको ऐड कर देना है। ओके, यहाँ पर ये दो पॉसिबिलिटी आएंगी। अगर कैरी आती है तो उस कैरी को लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ ऐड कर देना है। पहले हम उसे डिस्कार्ड करते थे आर्स कॉम्प्लीमेंट में, r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट में हम उसे डिस्कार्ड नहीं करेंगे, ले जाके ऐड कर देंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ और रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, पहले भी था और अभी भी। अगर कैरी नहीं आती है देन आपको रिजल्ट का r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट लेना होगा और नेगेटिव साइन उसके आगे, मतलब पता चल जाएगा कैरी नहीं आई है तो रिजल्ट नेगेटिव है, और रिजल्ट नेगेटिव है तो जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका वापस से आप r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट लीजिए, दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज वन एग्जाम्पल यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट मैथड, परफॉर्म 2 5 माइनस 1 4।
ओके तो तरीका वही है, 1 4 का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना। पहले तो हमें बाइनरी में करना है क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशंस आर ओनली ट्रू फॉर बाइनरी नंबर्स। ठीक है, तो पहले तो हमें इन दोनों को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना होगा, दैट इज नॉट अ बिग इश्यू। ओके 25 इन बाइनरी प्लस 14 इन बाइनरी। नाउ वी नीड टू टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। ओके सो दिस इज 25 और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 1 एज इट इज, देन 0 0 ऑल 1। so this is the 2's complement and then we will add one carry is coming. okay इस कैरी को अब हम ले जाके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो 0 1 1 हो जाएगा, बाकी एज इट इज। ओके तो दिस इज कैरी आई थी, इसका मतलब पॉजिटिव है और ये अब हमें मैग्नीट्यूड बताएगा। और आप देख रहे हैं दिस इज 11 इन डेसिमल और आना भी वही चाहिए था। 25 से 14 हम सब्ट्रैक्ट करते तो 11 शुड बी द आंसर और वी आर गेटिंग द 11 ओवर हियर। द डिफरेंट थिंग इन r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट इज जो भी कैरी आ रही है हमें उसे ऐड कर देना है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ। कमिंग टू द अनदर केस, जब आपका माइंड लेसर होगा सब्ट्राहेंड से। ओके तो हम क्या करेंगे, अप्रोच सेम होगा, कैरी नहीं आएगी ऑब्वियस है। जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका हम वापस से वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 1 का 0 0 का 1। ओके दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का 1 0 का 1 1 का 0 0 का 1 और दिस ऑल 4 वंस आर zeros, तो दिस इज -11, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके तो थोड़ा सा चेंज आया है यहाँ पे r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट में। एक तरीका ये हो सकता था जहाँ पर m आपका नेगेटिव नंबर है और n इज पॉजिटिव, सॉरी दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए थे। आई विल करेक्ट दिस, बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। तब क्या होगा, जब बोथ नंबर नेगेटिव होंगे तो हमें दोनों को ही r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट पर रिप्रेजेंट करना होगा। वो हो जाएंगे m स्टार n स्टार। दो पॉसिबिलिटी आएंगी, अगर कैरी आती है उसको ऐड कर दीजिए आप लीस्ट सिग्निफिकेंट के साथ। उसके बाद भी हमें चेक करना है कि इफ एम एस बी इक्वल टू आर माइनस वन, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में अगर 1 है और टेंस कॉम्प्लीमेंट के केस में 9 है। ठीक है, r minus 1 take r minus 1's complement of the number obtained in step 2 and place a negative sign। जैसा हम अभी पहले भी देखते आ रहे थे नेगेटिव नंबर के साथ कि कैरी जो आ रही है उसको तो हम ऐड कर देंगे, फिर हम चेक करेंगे एमएसबी को। वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर वो 1 है इसका मतलब रिजल्ट नेगेटिव है और हमें मैग्नीट्यूड के लिए वापस से रिजल्ट का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के केस में वापस से रिजल्ट का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। पहले भी हम ऐसा कर रहे थे जब दोनों नंबर नेगेटिव थे। दूसरा स्टेप, अगर कैरी नहीं आती है तो आप r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट लीजिए रिजल्ट का और नेगेटिव साइन लगा दीजिए उसके आगे। कैरी नहीं आती है तो इसका मतलब वो रिजल्ट नेगेटिव है, उसका मैग्नीट्यूड पता करने के लिए वी नीड टू टेक जो भी r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट है या नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, दो पॉसिबिलिटी है, वो आप वहाँ पर लीजिए। दिस इज एग्जाम्पल -25 -14। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 25 को लिख लेंगे प्लस 14 को प्लस 25 को लिख लेंगे बाइनरी में। फिर हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे डेट इज -14 और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे डेट इज -25 है ना। ऐड कर देंगे, कैरी आ रही है उसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे और फिर हम चेक करेंगे कि एमएसबी आपकी 1 तो नहीं है। अगर एमएसबी 0 होती तो यही खत्म था, लेकिन एमएसबी 1 है तो हमें वापस से इस रिजल्ट का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा जो कि ये है, एंड दैट विल गिव अस द एग्जैक्ट आंसर दैट इज -39। ओके सो सिमिलरली अगर हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे अप्रोच सेम रहेगी। हम जो भी आपका सब्ट्राहेंड है उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेके ऐड करेंगे, कैरी आएगी उसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ ऐड कर देंगे। रिजल्ट इज पॉजिटिव ऑब्वियसली, ओके क्योंकि कैरी आ रही है। यहाँ पे दूसरा केस जब माइनवेंड आपका लेस है सब्ट्राहेंड से, वो केस भी आप देख रहे हैं कैरी नहीं आएगी। कैरी नहीं आएगी तो हमें नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेना होगा रिजल्ट का। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब है हर एक डिजिट को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ओके फ्रॉम द राइट साइड ऑब्वियसली। तो 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 0 9 एंड 9 माइनस 3 6, तो दिस इज -69282। ओके अगर दोनों नेगेटिव होते उस केस में भले कैरी आए या ना आए, आप कैरी को ऐड करेंगे लेकिन चेक करेंगे एमएसबी को। अगर एमएसबी 9 है इसका मतलब रिजल्ट नेगेटिव है और वी नीड टू टेक नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट अगेन।
इसका जो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट है दैट इज 075,782, तो -75782 विल बी द आंसर। यस बिल्कुल नहीं, MSB 9 ने तो बता दिया कि रिजल्ट आपका नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हम उसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं इंक्लूडिंग साइन, मतलब इंक्लूडिंग दैट 9। तो इसका वापस से जब हम नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ये आएगा निकल के, है ना। तो दिस इज द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड। ये जो नंबर है ये बेसिकली -75782 लिखा हुआ है, ये हम कहना चाह रहे हैं, जो हमें समझना है अपने एंड पे कि दिस नंबर इज, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपका ये थोड़ा ना आने वाला है। आंसर आपका अगर आप रिजल्ट ये करते तो दोनों ऐड ही हो जाते, दोनों नेगेटिव है, तो ये रिजल्ट आना चाहिए था। तो उसके लिए ये हमने जो भी आपके रिसर्चर्स थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हाउ कैन वी कन्वर्ट सब्ट्रैक्शन इनटू एडिशन। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम जो वहां पर आ रही थी, उसका सॉल्यूशन भी उन्होंने निकाला कि हम चेक करें कि वहां पर MSB अगर 9 है तो वापस से सारे रिजल्ट का इंक्लूडिंग द साइन बिट आप 9 कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, और वो एक्चुअल मैग्नीट्यूड है इसका। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये नंबर ये है, लेकिन ये नंबर ये नहीं है, ये हमें समझना होगा। ओके ये नंबर ये नहीं है, ये नंबर बेसिकली ये लिखा हुआ है ये। तो हमें कंप्यूटर हो सकता है, मतलब इन द बिगनिंग फेज कंप्यूटर हमें ये आंसर दिया करता था, तो ये यूजर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो 9 देखते ही समझ जाते थे कि ये नंबर के लिए हमें वापस इसका 9 कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, दिस इज द नंबर। लेकिन अब तो हमें एग्जैक्ट नंबर मिल जाता है। कमिंग टू दिस पार्ट दैट इज कोड्स। Code is a systematic arrangement of symbols in a specific manner to perform operations. Various codes are used to represent data which may be numeric, alphabets, or special characters. Because in daily life, we need to handle numbers, alphabets, and special characters only. Okay, so we need to basically encode everything, numbers in specific code, alphabets in specific code, or special characters in specific code. And how can we do that? User must be very careful about the code being used while interpreting information available in the binary format. Codes are mainly divided into two types, weighted and non-weighted. Okay, weighted code are those weighted जिनकी those codes जिनका position के हिसाब से weight fix है, for example BCD code। और जिनमें पोजीशन के अकॉर्डिंग वेट फिक्स नहीं है, दोज कोड्स आर फॉर एग्जांपल ग्रे कोड या XS3 कोड। ओके ये क्या होते हैं? स्टार्टिंग विद द BCD कोड, some commonly use code, binary code, BCD, XS3, ग्रे, अल्फा न्यूमेरिक और एरर कोड्स हमारे जो सिलेबस में है। स्टार्टिंग विद द BCD कोड, BCD कोड में हम क्या करेंगे, हमारे पास केवल 10 वैलिड BCD नंबर होते हैं 0 to 9। ओके उसके आगे वाले जो भी है वो इनवैलिड BCD नंबर है। हम क्या करते हैं कि 0 to 9 को उसके 4 इक्विवेलेंट बाइनरी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज नोन एज BCD कोड। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से अगर हमें 2-3 को रिप्रेजेंट करना है BCD में, तो हम इसको 23 नहीं बोलेंगे, डेसिमल में दैट वाज 23, पर इन BCD दैट इज 2-3, हम 3 को रिप्रेजेंट कर देंगे उसके 4 इक्विवेलेंट बाइनरी से, और 2 को रिप्रेजेंट कर देंगे उसके 4 इक्विवेलेंट बाइनरी से। दिस इज द BCD कोड। जैसा हम कहीं हेक्सा डेसिमल कोड में भी कर रहे थे, लेकिन वहां पर ABCDEF भी वैलिड कोड थे, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ओनली 0 to 9 केवल यही आपके वैलिड कोड्स हैं, उसके बाद वाले सारे कोड्स इनवैलिड हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज 8421 कोड, क्योंकि अगर हम वेट की बात करें तो पोजीशन का वेट 2 to the power 0 पहला 1 है, 2 to the power 1 दूसरी पोजीशन का वेट 2 है, 2 to the power 2 तीसरी पोजीशन का वेट 4 है, और 2 to the power 3 चौथी पोजीशन का वेट 8 है। तो इसलिए हम इसे 8421 कोड भी कह देते हैं अकॉर्डिंग टू द वेट, है ना। तो पहले से वेट डिफाइन है हर एक पोजीशन का, इसीलिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेटेड कोड। एंड हाउ कैन वी रिप्रेजेंट? वी कैन सी दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट दीज नंबर्स। इंडिविजुअल हर एक डिजिट को उसके 4 इक्विवेलेंट बाइनरी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। दैट्स ऑल अबाउट द BCD। नाउ कमिंग टू द XS3 कोड, दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम BCD। यहाँ हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है हम उस नंबर में 3 ऐड करेंगे अपनी तरफ से, और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट वहां पे लिखेंगे, सो कॉल्ड XS3। कि अगर हमें 1 का कोड लिखना है XS3 कोड में, तो हम 1 का कोड ना लिख के वहां पर 4 का कोड लिखेंगे। अगर हमें 0 का कोड लिखना है इन XS3, तो वहां हम 0 का कोड ना लिख के 3 का कोड लिखेंगे। एंड दिस इज द वे टू इनकोड द इंफॉर्मेशन।
कि अगर वो इंफॉर्मेशन किसी हैकर को मिल गई तो उसे लगेगा कि ये तो 3 जा रहा है, लेकिन वो 3 नहीं जा रहा, वो 0 जा रहा है। हैकर को नहीं पता कि हम एक्सेस 3 कोड में ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन रिसीवर को पता है। तो रिसीवर क्या करेगा, जो भी कोड आएगा उसमें से -3 सब्ट्रैक्ट करेगा 3, और फिर पता कर लेगा कि दिस इज रिटन 0 लिखा है, 1 लिखा है, या 2 लिखा है, या 3। तो एक्सेस 3 कोड, जहां पर हर एक कोड में हम ऐड करेंगे डेसिमल 3। ओके, डेसिमल 2 फॉर एग्जांपल इज इनकोडेड एज 5, 2 में हम 3 ऐड कर देंगे और वो 5 लिखा जाएगा। ये वेटेड कोड नहीं है, पोजीशन डिफाइंड नहीं है किसी भी वेट की, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। ओके, पूछ लिया जाता है कई बार कि इट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है या नहीं। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड का मतलब है कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जो भी कोड आएगा हमें उसका 9th कॉम्प्लीमेंट दे देगा। ओके, so this is known as self complementing code. For example, access3 code for decimal 5 is 8. ओके, 5 का अगर हम कोड लिखेंगे तो वो 1000 होगा। 5 का कोड ना लिख के वहां पर हम 8 को रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में। यहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट आप देखिए कि इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट है वो होगा 011, एंड दिस इज द access3 कोड फॉर डेसिमल 4। 4 को हम अगर लिखेंगे तो वहां 7 को लिखेंगे 4 की जगह ना, तो दिस इज 7, दैट इज द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल 5 इटसेल्फ। ओके, तो ये हमें पता चलेगा यहाँ से कि अगर हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड की बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि अगर 5 का कोड हमने यहाँ पे लिख दिया, हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें या फिर इसका 9th कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो हमें पता चल जाएगा कि वो सेम नंबर ही है। वही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि 9th कॉम्प्लीमेंट 5 का 4 होता। ओके, और 5 को हम रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं वो 1001 से कर रहे हैं, उसका हमने यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया। दिस इज नाउ रिटन 4 इन access3 कोड, तो वो एक ही बात है, उस नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट लेके या वंस कॉम्प्लीमेंट लेके हम उस नंबर को गेट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज नोन एज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट, अगर पॉसिबल है तो। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 342 इन access3 कोड। आप देखिए 2 की जगह हम 5 का कोड लिखेंगे। ओके, 4 की जगह हम 7 का कोड लिखेंगे, 3 की जगह हम 6 का कोड लिखेंगे। तो अगर हमसे कहा जा रहा है 342 को access3 में लिखिए, तो हम 675 को लिख देंगे वहां पर। ये हमें खुद पता होगा कि अगर हमसे कहा 2 का, तो 2 की जगह हम 3 ऐड करके 5 का कोड वहां लिखेंगे। 4 तो 4 की जगह हम 3 ऐड करके 7 का कोड लिखेंगे। ऐसे ही अगर हमें वो बाइनरी फॉर्म में दे रखा है तो हमें समझना होगा वापस से कि हमें पता है कि दिस इज access3 कोड, ये डेसिमल में क्या लिखा हुआ है, तो हम -3 सब्ट्रैक्ट करके चलेंगे। जैसे ये है 0011, हमें पता है दिस इज 3, लेकिन access3 में 3 - 3 इसका इक्विवेलेंट होगा 0, ये 0 लिखा गया होगा access3 में इस तरीके से। ओके, दिस इज 8, तो ये 5 रहा होगा, दिस इज 5, और ये 12 है तो ये 9 रहा होगा। तो दिस इज 950 इन डेसिमल, जिसको हम access3 में लिखेंगे इस तरीके से। तो दोनों तरीके से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। डेसिमल नंबर दे दिया जाए और कहा जाए उसे रिप्रेजेंट करिए access3 कोड में, या फिर access3 कोड दे दिया जाए और कहा जाए डेसिमल में ये क्या लिखा हुआ है। तो एक तरफ ऐड करना है 3 और एक तरफ 3 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, this is gray code. It is a very useful code in which a decimal number is represented in binary in such a way so that each gray code number differs from the preceding and the succeeding number by a single bit. तो हम यहाँ देखेंगे कि कोई भी कोड है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोड लिख के चल रहे हैं 0 1 2, तो यहाँ जो 1 का कोड आएगा वो पहले वाले कोड से और बाद वाले कोड से एक बिट डिफर होगा, कोई एक पोजीशन पे ही चेंज होगा दोनों से। ओके, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग जो भी नंबर होगा उससे सिंगल बिट में वो डिफर करेगा। इट इज नॉट अ वेटेड कोड, इट इज अ रिफ्लेक्टेड कोड, रिफ्लेक्टेड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग एक ही बात है। हाउ विल बी कंस्ट्रक्ट ग्रे कोड नंबर? दिस इज द वे हाउ टू राइट द ग्रे कोड। अगर 1 बिट ग्रे कोड है, डेसिमल में 01, ग्रे कोड में भी दैट इज 01, लेकिन अगर 2 बिट ग्रे कोड होगा तो वहां पे 2 to the power 2 4 पॉसिबल केसेस होंगे, 0 1 2 3। डेसिमल में वो 0 1 2 3 है। हम जब लिखेंगे ग्रे कोड में ध्यान दीजिए, पहले हम लिख लेंगे 0 0, ओके, दैट इज 0 0। उसके बाद
पहला मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट से ही हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हम 0 का कोड यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज 0 0, और व्हाट वी विल डू, जो भी फर्स्ट बिट है उसका कॉम्प्लीमेंट और सेकंड बिट एज इट इज, इसका कॉम्प्लीमेंट और ये एज इट इज। ओके, मुझे लगा बोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये समझिएगा कि 0 0 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम ये करेंगे कि शुरुआत 0 1 से की, 0 एज इट इज, पहली जो बिट होगी उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दैट इज 1, और दूसरी बिट का मिरर इमेज। ओके, मिरर इमेज 0 का 0 ही आएगा। उसके बाद अगर 0 1 मिल गया तो हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, और 2 3 का कोड अगर हमें वापस से लेना है तो हम करेंगे कि जो भी पहली जो बिट आपके पास है उसकी मिरर इमेज, ओके, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, दैट इज 1 0, और इनका कॉम्प्लीमेंट। ओके, इस तरीके से हम वहां पे उस कोड को करते हुए चलेंगे। अभी 2 बिट के लिए आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हम लाइन कर देंगे, ये मिरर इमेज है, मिरर रखेंगे तो पहले 1 दिखेगा हमें, बाद में 0 दिखेगा, और इसका 1's कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज द वे टू राइट द 2 बिट ग्रे कोड। ऐसे ही 3 बिट ग्रे कोड को अगर हम लिखेंगे तो आप देखिए, पहला 0 0 0 0 0 1, उसके बाद हम यहाँ पर मिरर रखेंगे, पहला वाला जो है उसकी मिरर इमेज 1 0, दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट 1 1, और तीसरा एज इट इज। फिर हम यहाँ पर मिरर रखेंगे इन चारों के लिए, पहला मिरर इमेज 0 1 1 0, ओके, दूसरा मिरर इमेज 1 1 0 0, और तीसरे का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमें 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, इस तरीके से हमें ग्रे कोड मिल जाएगा। बाकी मैथमेटिकल भी हमारे पास तरीका है, हाउ कैन बी कन्वर्ट बाइनरी टू ग्रे। ओके, दिस इज लास्ट टॉपिक, हाउ कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम बाइनरी टू ग्रे। हमारे पास ये नंबर है कोई बाइनरी में, ओके, हम उसे ग्रे में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम पहली जो बाइनरी बिट होगी उसको एज इट इज लिख लेंगे, 1 है तो 1, 0 है तो 0। उसके बाद सेकंड बिट के लिए हम फर्स्ट और सेकंड बिट का एक्सऑर, ओके, एक्सऑर 0 1 1 और 1 0 1, 1 1 0 और 0 0 0, या फिर हम ऐड कर लें, कैरी को डिस्कार्ड करें, दोनों का एडिशन, फर्स्ट बिट और सेकंड बिट का एडिशन, कैरी को डिस्कार्ड करें, तो 1 1 दैट विल गिव अस 0, 1 1 दैट विल गिव अस 0, 1 0 दैट इज 1, 0 1 दैट इज 1। तो दिस विल बी द ग्रे कोड। तो बाइनरी से ग्रे में करना हो तो आसान है, पहली बिट एज इट इज, और फिर म्यूचुअल बिट के साथ उसे ऐड कर दीजिए या एक्सऑर कर लीजिए, तो 1 1 0 1 1 0 1 0 1 एंड 0 1 1। दिस इज ऑल्सो द वे। कन्वर्जन का एक क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर, बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी। अगर हम ग्रे टू बाइनरी करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस है, पहली बिट एज इट इज, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है उसके साथ अब हम एक्सॉरिंग करेंगे, तो 1 0 1, फिर 1 0 1, फिर 1 1 0, फिर 0 1 1, एक्सोरिंग या एडिशन, एडिशन के केस में कैरी को डिस्कार्ड करिए। तो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम ग्रे टू बाइनरी। ओके, तो बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी आपको समझ में आना चाहिए। जब हम बाइनरी टू ग्रे करेंगे, फर्स्ट बिट एज इट इज, बाकी की बिट्स के लिए यहीं पे, ओके, म्यूचुअल बिट्स के साथ, और जब हम ग्रे टू बाइनरी करेंगे तो जो रिजल्ट आ रहा है उसके साथ हम एक्सोरिंग करेंगे। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक कोड्स और है यहाँ पे, एक्चुअली 2 3 स्लाइड है जो हम बाद में कवर करते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कोड्स बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमने जो कोड देखे वो 4 बिट कोड्स थे एट मोस्ट, ओके, 4 बिट कोड्स थे, तो 2 to the power 4 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब हम 16 पॉसिबल कोड्स का मतलब है केवल 16 डिफरेंट थिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिक कोड, उससे ज़्यादा को नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास अल्फ़ाबेट्स ही 26 हो जाते हैं, नंबर्स आपके पास 10 हो जाते हैं, तो 36 तो कोड हमें यूनिक यहीं पे चाहिए। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे पास है बहुत सारे। तो जितने ज़्यादा नंबर्स या अल्फ़ाबेट सिंबल्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, उतने ही बिट का कोड हमको चाहिए, तभी हमें उतने ज़्यादा यूनिक कोड मिलेंगे। क्योंकि किसी भी
दो चीज़ों को हम सेम कोड नहीं प्रोवाइड कर सकते, कंफ्यूजन होगा। तो हमें हर एक को यूनिक कोड देना है, दैट्स व्हाई वी आर कमिंग टू द अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। 3 तरीके के होंगे। इंटरनल कोड 6 बिट का कोड होगा, आस्की कोड 7 बिट का होगा और ABCDIC 8 बिट का कोड होगा। यानी कि 64 कॉम्बिनेशंस हमें यहाँ पे मिलेंगे। अगर हमारा काम 64 डिफरेंट कोड से हो जाता है, वी विल यूज दिस। अगर हमें 128 कोड्स की ज़रूरत है तो वो हमें यहाँ पर मिलेंगे आस्की में, और अगर 256 कोड्स की ज़रूरत है वी विल गेट इन EBCDIC। ओके, तो दिस इज द बाइनरी कोड। यहाँ पे आस्की 7 बिट में होगा, ओके, 128 कैरेक्टर्स होंगे। EBCDIC 8 बिट में होगा, टोटल 256 कैरेक्टर होंगे डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे एक एग्जांपल है जो आप ट्राई करिएगा, दीज आर द रेफरेंसेस, दैट्स ऑल। ओके,